Teachers, please occupy the seats. Our guests are coming. Participants, you move to your places. Participants, move to your places. Rotarian Davinder Singh, District Governor 2020-21, RI District 3070, along with members of management, is approaching amongst us. So please welcome with the chopping sounds of your hands. Of us that Rotarian Davinder Singh, District Governor 2021, RI District 3070 are with us. So we are also fortunate to have Brahmachari Tarak Chaitanya ji with us. So we welcome you all on the premises of our school. So give them a huge round of applause. नमस्कार। भवन कुमार सदन के इस प्रांगण में उपस्थित प्रबुद्ध जनों व फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके दर्शकों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ जानकारी आपसे साझा करने की आज्ञा चाहती हूं। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के दौरान आज के इस कार्यक्रम का आयोजन सारे के सारे सुरक्षा नियमों को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये सारा का सारा कार्यक्रम हमारे अध्यापक गणों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोई भी विद्यार्थी भाग नहीं ले रहा है। इस प्रस्तुतिकरण के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क कवरिंग के मानक हैं उनकी अनिवार्यता का पूरा ध्यान रखा गया है। और अभी जो आप ध्वजारोहण की प्रस्तुतिकरण आप देखेंगे उसमें भी हमारे 5 से ज़्यादा अतिथिगण शामिल नहीं होंगे। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हम सारे के सारे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन कर पूरे जन समूह व हमारे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के द्वारा अपने साथ जोड़कर उनमें राष्ट्र प्रेम भाव जागृत कर सकें। जय हिंद। आगामी कार्यक्रम के लिए मैं कोमल और शीतल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now, I would request our chairman, sir, to please welcome our today's guest. Give a huge round of applause. Request our chairman sir again to please welcome Brahmachari Tarak Chaitanya ji. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now it's time without which this day is incomplete. Let's unfurl the national flag. So I beseech a magnanimous guest, Rotarian Davinder Singh, District Governor 2021, RI District 3070, and management team to commence the event with the traditional form of independence, the unfurling of tricolor. So please, sir, and I would request you all to please stand in the honor of national flag and sing national anthem along with us.
I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation. I propose that we replace our old and ancient education system. For if the Indian think that is foreign and English is good and greater than their own, I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation. I propose that we replace our old and ancient education system. For if the Indian think self-esteem, and they will truly be a dominated nation. Sheetal, isn't it the letter by Lord Macaulay to the British Parliament written on 2nd February 1835? Yes, it is. In 1835, the seed to penetrate our beloved India was sown, and all the trespassers, Britishers, with their mighty cunning strategies, enslaved our beloved Sone ki Chidiya. But we Indians walked ahead with a double solidity and turned the tables to throw them out of the nation, thus resulted in today's 74th independent India. So now it's time to pay obeisance and our loving emotions to the free-spirited India by becoming nostalgic with the song's overflowing love for the nation. So let's listen how our Bhavan's music team is going to herald our mind and soul with the spirit of patriotism.
डेरा। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल ये बोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। सुनो तो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो तो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे हम पे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम चले बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम जुटे बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हो हिंदुस्तानी, हो हिंदुस्तानी, हो हिंदुस्तानी, हो हिंदुस्तानी। Wow, what a melodious start of the show. Give a huge round of applause again. Now, I entreat the sculptor who shaped all of us, the navigator of this flagship of knowledge, yes, our principal Dr. Anita Bhalla, to share her thoughts on this day with us. Please, ma'am. Namaskar. My dear parents, children, and guests present here. My teacher has already told you this celebration is by our staff. We have not invited even a single parent and student here. Rotary Club has joined us. Thank you for being with us. This Independence Day, I want to ask something from all of you. Have you discovered a new form of independence in these not so pleasant times of coronavirus outbreak? There is no denying that these times have been difficult in terms of mental, physical, and financial health for many individuals and families. I pray to God that everyone stays safe and we can get back to normality again. But I have been left surprised at the new dimension of independence that I have discovered within me. Sometimes one needs to be alone to find out who one is and what one wants in life. This time in lockdown and social distancing has been a blessing for those with the right attitude. Do you have the right approach? Dear children, we can all plan and prepare ourselves, but can we control what is happening around us? The right attitude is the one that focuses on doing what is doable. These times have given us the independence to do lots of things for your soul and inner happiness. While people around you are cribbing or complaining about the current state of affairs, I invite you to free your inner self and unleash the trapped potential within yourself.
Start that painting you always wanted to do. Self-learn a musical instrument, write poetry, grow some plants, or read those books you had purchased, or try to improve on your academic subjects. Doing these actions will help you feel real independence. I also urge parents to engage their children in household chores and activities. We must prepare our children for facing the realities of life. Real independence does not lie in eating out, going out, or enjoying. Real independence is freedom from evil thoughts and meaningless actions. While you take all precautions and adopt safety measures to protect yourself from the current pandemic, I invite you all to free yourself from your fears. Focus your energies on your inner self and inner potentials. Make full use of this time. I hope my message is clear. Happy Independence Day to all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for your words. Now it's time to bask in the divine thoughts. So I request Brahmachari Tarak Chaitanya ji to please come and endow your blessings upon us. Sir, please. जय हिंद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। विशेष रूप से पधारे हमारे चीफ गेस्ट, उनका धन्यवाद। प्रत्येक वर्ष हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ दैवी आपदा ऐसी है जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हम जो कर रहे हैं फॉलो, ये भी भगवान की ओर से हमारे लिए एक संकेत है कि जब जब धरती पे कहीं किसी तरह का कोई पाप विशेष बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं उसको स्थिर करती है। ये प्रकृति का एक नियम है। जब भी कोई चीज़ पीक पे जाती है, अति पे जाती है, तो प्रकृति को उसको संभालना पड़ता है। कहीं ना कहीं दोष हमारा ही था कि आज हमें मुंह ढक करके सबके सामने घूमना पड़ता है, चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं दोष हमारा ही था। तो प्रकृति हमको संकेत यही देना चाहती है कि अभी भी संभल जाओ, मौका है। अभी भी नहीं संभले तो प्रकृति के पास बहुत सारी आपदाएं हैं, वो करने में सक्षम भी है, समर्थ भी हैं। लेकिन जिस पर्व को हम धूमधाम से मना रहे हैं, वो पर्व कोई सामान्य पर्व नहीं है। शायद हम उस दिन को याद करके सोच पाएं कि वो पहला जब दिन होगा स्वतंत्रता दिवस का, उन लोगों के मन में क्या उमंग रही होगी, क्या एक खुशी रही होगी कि आज हम आज़ाद हो गए, आज हम आज़ाद हो गए। शायद उतनी उमंग आज हमारे मन में ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रत्येक वर्ष की भांति हम कोई पर्व मनाना पड़ता है, लेकिन वो जज्बा, वो जोश जो उन लोगों के मन में था जिन्होंने अपने लहू को समर्पित करके, बलिदान करके देश को आज़ाद करवाया, वो कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। वो चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो साक्षात भगवान के अवतार थे। उनके अवतार के कारण ही हमको इतना बड़ा देश मिला। तो हम पहली बात देश को गर्व महसूस करें कि हमारा देश भारत है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, आप में से कई लोग लास्ट जब था इंडिपेंडेंस डे तो हम वहाँ पर थे। भारत शब्द के ऊपर कुछ मैंने चर्चा की थी, शायद आप लोगों को याद हो। भा प्लस रत, भारत शब्द अपने आप में एक विशेष है। भा मैंने ज्ञान, रत मैंने जो उसमें रमण करने वाला है। ऐसा देश जो ज्ञान में रमण करता है वो भारत देश है। केवल आधार कार्ड पे, केवल पासपोर्ट पे हम इंडियंस हैं, ये कहने मात्र से इंडियंस नहीं हो जाते। जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक हम पूर्ण रूप से भारतीय नहीं हो सकते।
चाणक्य का स्मरण आता है। चाणक्य बोलते हैं, देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम, देश रक्षा समम यागम, दृष्टो नैवच नैवच। चाणक्य बोलते हैं, देश रक्षा के समान और कोई पुण्य नहीं, देश रक्षा के समान और कोई व्रत नहीं, देश रक्षा के समान और कोई यज्ञ नहीं और कोई त्योहार नहीं। ये चाणक्य अपने मुखारविंद से बोलते हैं कि देश सर्वोपरि है। परिवार से, समाज से, प्रांत से, समाज से देश सर्वोपरि है। तो हमारे नौजवानों ने जो कुर्बानियाँ दी वो केवल अपने लिए नहीं दी, हमारे लिए दी। तो हमें उनको नमन करना चाहिए आज के दिन कि उन महापुरुषों के कारण आज हमको स्वतंत्रता का अनुभव हो पा रहा है। लेकिन जो हमको स्वतंत्रता मिली भी सही, उसका कितना हम सदुपयोग कर रहे हैं ये हम भली भांति जानते हैं। तो हम पुनः उन महापुरुषों को नमन करें, समर्पण करें अपना जीवन उनके प्रति, और उनको याद करके ही आज का दिन हम निभाएं। पुनः आप सबको इस विशेष पर्व की बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, sir. Sheetal, do you know the true meaning of freedom? हाँ कोमल मैम, आजादी का मतलब है बंधनों से मुक्ति, Freedom from restrictions. भय से मुक्ति, Freedom from fear. कुकर्मों से मुक्ति, Freedom from social evils. बुरे विचारों से मुक्ति, Freedom from negativity. अंग्रेजों से मुक्ति, Yes, of course. Freedom from Britishers. To commemorate all the heroes of the nation, our Bhavan's teachers are going to present how our freedom fighters achieved the independence. अंबर हेठा धरती वसदी, देश है मेरा किन्ना सोना, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। सोने की चिड़िया मेरा भारत देख, सभी देशों का जी था ललचाता। अरबी, ईरानी, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने मेरे देश में डाला डाका। छन्नी कर दिया मेरा हिंदुस्तान, ना था संभालने वाला कोई इसकी कमान। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया मेरे देश को नोच डाला, लूट कर इसकी सुख समृद्धि पर कटी अपंग चिड़िया बना डाला। चेतना सो रही थी, सोया जमीर था, मेरे देश भारत का छलनी हुआ शरीर था। तब मंगल पांडे ने क्रांति की मशाल जलाई, पीड़ित समाज में आजादी की उम्मीद जगाई। मदन लाल ढींगरा जो अमृतसर में जन्मे, लंदन में पढ़े लिखे, जिन्होंने अंग्रेजों की मांग में जाकर कर्जन वायली का वध किया,
इसलिए 1909 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दी गई। Curzon Wiley and his wife was leaving hall and Dhingra fired 5 shots at his face, 4 of which hit his target. Madan, you are the culprit. Why did you shot Mr. Curzon? Do you want to give any explanation? पिछले 50 साल में हुए 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। मैं उन्हें ही जिम्मेदार मानता हूं। भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड लूटने के लिए अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं कि वे भारत पर कब्जा करें। मेरी नजर में अंग्रेजों का मरना ही न्याय है। भारत की स्वतंत्रता के लिए 2 आंदोलन शुरू हो गए, एक सशक्त क्रांतिकारी और दूसरा महात्मा गांधी, जिनका रास्ता सत्य अहिंसा से होकर जाता था। सरकार, हम बेतिया गांव चंपारण बिहार से हैं। हमें अंग्रेजों ने सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया और अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें जानवरों की तरह पीटते हैं। जब तक यह एक उंगली है, यह कुछ नहीं कर सकती। मुट्ठी हो तो हिम्मत और ताकत बनती है। मिलकर शांति से आवाज उठाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लुधियाना विच जम्मिया सराबा पिंड दा वासी अदुੱਤੀ देश भगत नूं 19 साल की उम्र विच ही अंग्रेज़ां दे दित्ती फांसी। अमरीका विच पढ़न गया, गदर पार्टी सी अपनाई। वापस आ पंजाब विच गदर लहर होर चमकाई। लाहौर विच विद्रोह कारण 24 साथियां नाल होया गिरफ्तार। फांसी दी सज़ा नूं भी समझ रहा सी करतार एक उपहार। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਤਨ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 16 नवंबर 1915 के दिन करतार सिंह सराभा को उनके 24 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी, उन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की और लोगों को जागृत किया कि स्वदेशी चीजों से प्यार, विदेशी चीजों का बहिष्कार, शिक्षा का महत्व और अपने अधिकारों की मांग बहुत आवश्यक है। लोकमान्य तिलक जी ने भी उनका इस आंदोलन में उनको सहयोग देकर अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। भारतीयों, हम आजादी अपने वीरों के रक्त के बदले में नहीं लेंगे। हम स्वतंत्रता की किश्तें अपनी बहु बेटियों के आंसुओं के रूप में नहीं भरेंगे। स्वतंत्रता हमारा हक है और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए, ईसा के जन्म से 3000 साल पहले से भारतीय वाणिज्य और व्यापार में महान था। हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हुए किसी को भी अपने देश भारत पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब वह समय आ गया जब हर भारतीय आज़ादी की कामना करता था। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई आंदोलन शुरू हो गए, जिनको दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियां तेज कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका ज्वलंत उदाहरण था। 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा और वहां पर शेरे पंजाब नाम से प्रसिद्ध महान नेता लाला लाजपत राय की अगुवाई में इसका विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक।
मारी गई एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और इस तरह भारत का ये पंजाब केसरी देश के नाम कुर्बान हो गया और इन्हीं की हत्या का बदला लेने की सौगंध क्रांतिकारियों ने उठा ली। आजाद जी, हम लाला जी की शहीदी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम सब, मैं, तुम, राजगुरु, सुखदेव बहुत जल्द ही इस काट को मारकर इसका बदला लेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भगत सिंह ने ऑफिसर स्कॉट की जगह सैंडर्स को मारकर अंग्रेजों को अपना दुश्मन बना लिया और कुछ बड़ा करने की योजना बनाकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम धमाका कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी और बुटकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। सरदार, चलो फांसी देने का टाइम आ गया है। अर्थियां जब उठे शहीदों की हो, ऐ वतन वालों तुम सबर खोना नहीं हो, हंसते हंसते विदा हमको कर देना, आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं, भूल जाना नहीं, भूल जाना नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रेमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जो सरासर फूट डालो और शासन करो की नीति थी। इसी के परिणाम स्वरूप देश में विभाजन की धारणा का बीजारोपण हुआ। गांधी जी, देश का हर मुस्लिम अपना एक अलग मुल्क चाहता है, इसलिए बंटवारा तो होकर ही रहेगा। जीना, हमने मिलकर आजाद भारत का स्वप्न देखा है और तुम बंटवारे की बात कर रहे हो। मुझे हिंदुस्तान की आजादी से कोई सरोकार नहीं, मुझे सरोकार है मुसलमानों की गुलामी से। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू हम पर हुकूमत करें। पर हिंदू तुम पर हुकूमत क्यों करेंगे? हम सब एक राष्ट्र हैं। जीना, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, अपनी सरकार स्वयं बनाओ। यही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी सरकार खुद बनाएंगे, अपना आजाद मुल्क। बंटवारा तो तय है गांधी जी। 15 अगस्त 1947 को सदियों की नींद व स्वतंत्रता के अविरत संग्राम के बाद गुलामी का अंधेरा पार कर हिंदुस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के साथ आजादी की भोर देख रहा था। शुभ दिन है
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा भरभर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या वीर थे वो अभिमानी, क्या धन्य थी उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। What a wonderful performance. The person who hardly needs any introduction is our chairman, sir. The one who has made all of us feel proud by his distinguished work in numerous capacities. So I would request you, sir, to please come on the stage and enlighten us with your motivational work. नमस्कार भाइयों बहनों, आप मेरे से सहमत होंगे कि मेरा ख्याल है 4-5 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि 15 अगस्त का फंक्शन ज़रूर करेंगे। तो मेथोडोलॉजी डिसाइड करी गई और आपने देखा जिस ढंग से हमारे टीचर्स ने, स्पेशली म्यूज़िक और डांस डिपार्टमेंट ने यह तैयारी और प्रस्तुति की है, आई रियली फील प्राउड ऑफ देम। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है और स्कूल का नाम भी रोशन किया है। आज सभी स्कूल बंद हैं। मेरे को नहीं लगता कोई स्कूल आज इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा एक्सेप्ट भवंस। सो वी फील प्राउड। क्यों? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसमें हमारे फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर के.एम. मुंशी, he was one of the member architect of the constitution,
He was very, very vociferously involved in freedom struggle also. We value our freedom struggle. We value our freedom. अभी आपने सुना कि हमारी प्रिंसिपल महोदया ने बच्चों को और पेरेंट्स को बड़ी अच्छी बात की है कि इस जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, है तो ये प्रॉब्लमेटिक अपॉर्चुनिटी, बट इंटेलिजेंस सिस्टम में है कि हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के उसका सदुपयोग किया जा सके। तो बच्चों में पॉजिटिविटी पैदा करना पेरेंट्स का काम है, टीचर्स, हम स्कूल पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस कोरोना डेज में महीनों बच्चे घर पे बैठे हैं तो कुछ नेगेटिव टेंडेंसीज उनमें आ जाएं। हमारे ब्रह्मचारी तारक जी ने बड़ा अच्छा बोला कि हमें कुछ सावधान होना पड़ेगा कि हम प्रकृति का दोहन कितना करेंगे, कि ये जो कोरोना आता है या कोई ऐसी महामारी या ऐसी कोई भयावह दैविक परिस्थिति क्रिएट होती है तो हम किसी न किसी देश को, किसी न किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को उसके जिम्मेदार ठहराते हैं। आप एक बात मत भूलो, ये भारतवर्ष आस्तिक मुल्क है। हम भगवान की प्रेजेंस को समझते हैं और महसूस करते हैं। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है, उसने बनाई है और उसको चलानी भी आती है, उसको संभालनी भी आती है। हम इंसान अपनी दुर्बुद्धि से, दुष्कर्मों के साथ अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, याद रखो जहाँ वो कृपालु है, जहाँ भगवान दयालु है, वहाँ पर खबरदार वो बड़ा ज़बरदस्त है, उससे डरो। क्योंकि अगर हम सारे के सारे इंसान इस बात पे लग जाएंगे कि उसकी सृष्टि को ख़राब करें तो उसको फिर हमें सजा देनी आती है। तो इसलिए हमें अपने सोच को, अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। अभी हमने देखा आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी और उनको याद करना हमारा सत्कर्म बनता है, क्योंकि कृतज्ञता भारतीय संस्कृति का एक अनूठा अंग है जिसने हमारे पर परोपकार किया है, जिसने हमारा भला किया है। हम अगर उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो हम इंसान नहीं हैं। तो हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं, हम उनकी जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उनको भली भांति सत्कार नमन होके उनको स्वीकार करते हैं। पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि वो भारत की आज़ादी क्यों चाहते थे, उसका मतलब क्या था, क्या सपना था उनका। उनका सपना था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा इसका शोषण बंद हो जाएगा, भारतीय मुक्त हो जाएंगे, भारतीय निर्भय हो जाएंगे, भारतीय सुखी खुश हो जाएंगे, हैप्पीनेस रहेगी यहाँ पर, खुशहाली रहेगी यहाँ पर। 73 साल के बाद आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग भूखे सोते हैं। माता पिता को परेशानी है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, माता पिता को परेशानी है कि बच्चों के लिए इलाज कैसे करवाना है। सभी लोग डरे हुए हैं, विश्वास नहीं आता कि भारत तो आज़ाद है, अंग्रेज़ तो चले गए, मगर अपनी प्रॉब्लम से खो। अगर यही शहीद आज खड़े हो जाएं, जाग जाएं, तो रियली उनको शर्म आएगी, क्या हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ करी थी। जरा विचार तो करें। और हम सब लोग हिंदुस्तानी इस बात का ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी है वो सरकारों की है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे मंत्री बने हुए हैं, जो हमारे MLA, MP, इवन IAS ऑफिसर, जो बंदे ज़्यादा जिम्मेवार हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं स्टेज पे कहना चाहता हूँ, ये अपनी सारी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। आज देखो, सारे मुल्क को अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो धर्म के नाम पे हम लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। एक सिर्फ दिल्ली है जिसने ये कहा कि मेरा काम देखो और मेरे को वोट डालो। आज करप्शन की बात करें तो करप्शन हर लोग फील कर रहा है कि घर घर में, हर ऑफिस में करप्शन फैली हुई है। इतनी मोटी सरकारी बंदे तनख्वाहें लेती हैं, फिर भी करप्शन। अफसोस होता है, ये हो क्या रहा है। और मैं आपको सरेआम बता दूं कि आप सैलरीज देते हैं, कितनी मोटी सैलरीज सरकारी अफसरों को दे रहे हैं, काम उसके बदले में क्या होता है आपको पता है, ऑफिस में काम क्या होता है। और आज जो एफिशिएंसी है सारे ऑफिस में,
ये जो रिजर्वेशन है, देयर इज अ मेन सोर्स, कोई इसको टच नहीं कर रहा, कोई इसको सोच नहीं रहा कि जब हम सारी ब्यूरोक्रेसी का, सारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी क्वालिटी कम कर देंगे तो कौन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर सकता है फिर। और दूसरा, पॉपुलेशन पर किसी का ध्यान नहीं है कंट्रोल करने का। जो हम मुख्य प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज की, कोई इसको टच नहीं कर रहा। उसके लिए सबसे पहले मैं ये विचार रखता हूँ कि सबसे पहले मिनिस्टर्स, सेंटर से शुरू हो, स्टेट्स मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, सारे अपनी सैलरीज में कट करें। हम हैरान होते हैं, एक वजीर रिटायर होता है या नहीं रहता है तो लाखों रुपए उसको पेंशन मिलती रहती है सारी उम्र। ये हो क्या रहा है? गरीब मुल्क का पैसा वो लूट रहे हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी है इस देश को चलाने के लिए। आप सबको जागना पड़ेगा। वी हैव टू रेज अवर वॉइस। ये सारी जो हाई पेंशन्स रिटायर्ड या फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर्स ले रहे हैं, और एक मिनिस्टर, एक बंदा 5-5 तरह की पेंशन ले रहा है। 5-5 लाख रुपया हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को ये पेंशन के तौर पे मिलता है। ये गरीब मुल्क है। क्यों लूट रहे हो? अगर आप लूट रहे हो तो आपके ऑफिसर्स भी लूटेंगे। आपके ऑफिसर लूटेंगे तो देश कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले अपने भत्ते कम करें, अपनी सैलरीज को कम करें, आप लूटना बंद करो। फिर जो हाई ऑफिसर्स को इतनी सैलरीज दे रहे हो, सारी गवर्नमेंट मशीनरी की सैलरीज कम करो, और उसके बाद फिर अपना बजट को संभाल के, करप्शन को रोक के, इतना पैसा आपके पास है, इतना पैसा आपके पास है, अगर देश के लिए लगाओ तो देश हमारा आज सोने की चिड़िया बन सकता है। तो भारतवासियों, आज जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने ये नहीं कहा था हमें याद रखना, उन्होंने कहा था ये याद रखना हमने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं, देश आज़ाद किस लिए चाहिए था। ये थोड़ी अंग्रेज चले जाएं लूट के और दूसरे लूटने वाले आ जाएं। हुआ यही है। कुछ पॉकेट्स, कुछ बंदे, कुछ पार्टीज लूट रही हैं और हम सब लूटे जा रहे हैं। हम आज़ादी के नाम पे उनको तो श्रद्धांजलि देंगे, मगर इनको भी सबक सिखाना जरूरी है जो हमारे आज के हुक्मरान बने हुए हैं। तो मेरा कई बार दिल दुखता है कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार हमें हेल्पलेसनेस फील होती है कि सारे हिंदुस्तानी आराम से इसको सही जा रहे हैं। क्यों नहीं कोई आज भगत सिंह पैदा हो रहा? आज कोई ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं कि आवाज़ तो उठाएं कि कम से कम ये रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं जो रुके, शुरू हो जाए। तो आज अगर रुकेगा, हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं हम पहुंच जाएं। तो आपको भी आने वाली जनरेशन याद रखेगी कि इस जनरेशन ने कुछ किया। अदरवाइज आई टेल यू, हमारी जनरेशन ने सबसे ज़्यादा देश का नुकसान किया है, मैं एडमिट करता हूँ। We have not been vocal about it, we have not been जागृत about it। हमने अवेकनिंग होके अपना मुल्क संभाला नहीं है। मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ, कम से कम आप जाग जाओ, अपनी सेल्फिशनेस को त्याग दो कि मेरा करियर, भगत सिंह का भी तो करियर था। करियर आपका कहीं इतना असुरक्षित नहीं है जितना उनका था। आपको कोई फांसी देने वाला नहीं है। मैं आपको तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा। ये आज़ाद मुल्क है। जागिए, अपने देश की आज़ादी को संभालिए। देश आपका है, हमारा है। जय हिंद। मैं एज यूजुअल 3 बार नारे लगाता होता हूँ। जय हिंद, प्लीज जोर से बोलिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं एक अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। आज का जो मुख्य अतिथि है हमारे छोटे भाई हैं सीए देवेंद्र सिंह, हमारे रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और बहुत कॉम्पिटेंट सीए हैं और एक नेक इंसान हैं। आज हमने उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है ताकि हमारे बच्चों को, हम सबको उनके उद्बोधन से लाभ हो सके। मैं सीए देवेंद्र सिंह जी का यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में ब्रह्मचारी तारक चैतन्य जी, हमारे लोकल रेजिडेंट ब्रह्मचारी हैं चिन्मय मिशन के, वो भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और ये आज फिर रोटेरियन बलदेव राज जी ने हमारे जो
टीचर्स हैं उनके प्रोग्राम से खुश होकर 5,000 रुपये का राशि दी है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको याद कराऊं, एक बेड़ा सगना का प्रोग्राम हुआ था, वो भी हमारे टीचर्स ने किया था, तब भी इन्होंने 5,000 रुपये की धनराशि दी थी। मैं उनका स्वागत करता हूं। अब आज हमारे मध्य में रोटेरियंस आए हुए हैं, रोटरी क्लब अमसमिट्टो ने अपनी मीटिंग भी रखी हुई है। इन सब का भी हमारे से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much. Now, I intercede our eminent and seventh guest, Rotarian Davinder Singh, to please come and share some words of wisdom. Sir, please. Good morning, friends. Before I start, I would like you to applaud for the beautiful program we have just witnessed. मुझे लगता है ये तालियां थोड़ी सी कम हैं जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। Thank you very much for your support. And finally, let's applaud for our nation, for whom we are celebrating our Independence Day. This backdrop on the back is very apt, which is writing the celebration. My dear friend, this life itself is celebration. It is said that if you don't have anything in the evening to do, then celebrate the evening. I think we must celebrate each second of our life, every nanosecond of what we are doing, and we should feel gratitude to the Almighty for that day He has made us available to make this celebration. I am very glad to be here. सर ने यहाँ पे लिखा मुख्य अतिथि, मुझे तो लगता है मेरा अपना स्कूल है सर। आई डोंट डिजर्व टू बी मुख्य अतिथि, बट थैंक यू वेरी मच. In capacity of Rotary International District Governor, I feel pride and proud that you have invited me on behalf of District 3070, which is from Punjab, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir and Ladakh. So I'm very much honored on behalf of all the 4,000 Rotarians and their families. Chairman Shri Avinash Mahendra ji, Principal Dr. Anita Balla, Brahmacharya Tariq Chaitanya ji, President Amani Arora of Rotary Club of Amsamit Town, the host club of today's meeting, Mr. Goyal, the Secretary of the club, past District Governor Harminder ji, and again past District Governor Avinash ji in his dual capacity as the Chairman of the school and the past Governor of Rotary Club of Amsamit Town, and my very dear friends from Rotary along with all the Presidents and Secretaries who are present here. Friends, it is actually a matter of great pride that we are celebrating 74th Independence Day of our beloved country, that is India. मुझे ऐसा लगता है कि इस हॉल के अंदर आई थिंक 3 या 4 लोग होंगे जो 15 अगस्त 1947 का दिन जिन्होंने देखा होगा। बाकी लोगों ने 15 अगस्त 1947 के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। जो हमारे वक्ता पीछे आए हैं उन्होंने बताया, जो हमने भी देखा और हर साल देखते आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आवर फ्रीडम फाइटर्स हैड डन फॉर द फ्रीडम। आई थिंक उस चीज़ का एहसास हमें नहीं है। ये एहसास हमें तब होता है बिकॉज जब हम लोग कहीं अब्रॉड जाते हैं, आप लोग जब भी जाते हैं, जो इंडियंस हमारे अब्रॉड सेटल हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, जिस तरीके से वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और जिस तरीके से वो एक फ्रीडम को सेंस करते हैं, आई थिंक दैट इज़ द सिंबल। वो एक्चुअल में जानते हैं कि इस फ्रीडम की कीमत क्या है, इस फ्रीडम की वैल्यू क्या है। बाय गवर्नेंस विद द फॉरेन पावर इज एक्चुअली वेरी सफोकेटिंग. They understand, we don't understand because we have not experienced that. I think we need to understand that. Secondly, the kind of sacrifices, everybody knows it. But we people who are sitting in this hall and the persons who are watching on the Facebook Live, I would say we belong to that section of the society which we can proudly say we are elite society, and we compose approximately 5 or 7% of the total population of 140 crores Indians. So we are those blessed people.
The kind of money we invest on our children education, the kind of money we invest on our houses, the kind of money we invest on our various lifestyle activities, believe me, एक छोटा मोटा सरकारी स्कूल जो गांव में है ना, उस इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी अगर हम 25% भी जितना हम स्पेंड करते हैं पूरे लाइफ स्पैन में, अगर 20 या 25% भी उसका एक हिस्सा निकालें, आई एम नॉट सेइंग कि यू ओपन अ सरकारी स्कूल, बट आई एम जस्ट सेइंग विद दैट मनी वन प्राइमरी और secondary school can be opened. The kind of money we invest in our children, education and career. So you can imagine what kind of money we are spending on these things. That's why we are earning, we have all the rights to spend it. अगर हमने कमाया हमें खर्चना भी, so that's our rightful duty to do it and responsibility for a family. But I would say this money belongs to our nation. I am a chartered accountant by profession. I am talking in money terms. Please excuse me for that. Point is, what I'm trying to tell you is that if we are so blessed that the entire nation's wealth, चाहे हम 5%, 7% या 10% एफ्लुएंट लोग हैं इस समाज के, बट अगर हम काउंटिंग करें कि वेल्थ की, वी प्रिजर्व अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ. अगर हमारे पास वो वेल्थ है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, तो आई थिंक वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अवर नेशन. Mr. Chairman has very aptly said that our administration, our state, the persons who are governing us, they should be very, very responsible. But at the same time, my dear friends, we should also be more responsible towards our nation. Because if God has given us that kind of opportunity, we must use and channelize that opportunity to serve our nation. That is the prime responsibility. If we really want to get ourselves free from, and the Master of Ceremonies, you beautifully said Ajadi from fear and Ajadi from negativity and Ajadi. So can you give them applause please? So it was a wonderful phrase what they... Thank you sir, thank you so and much. जिसने भी script लिखी है, so my compliments to those teachers. And I think that is in real sense, if we really want to do that Ajadi, we have to do some collective effort. That collective effort is very, very important. If we are investing in our education of our children to making them good in career, which actually we should do, I think it is our responsibility to make them sensible citizens also. Sir, you are absolutely correct that we belong to a corrupt nation. Because a corrupt generation. It is correct, sir. I 100%, rather 200% agree to it. Because the reason is this, मैं आपको एक economic reason बताता हूँ कि why we generation, our generation, not yours sir, आप लोगों ने तो why? Friends, 1981, 1990s, we are a generation, all of us who are in their 50s, they are a generation of 1990s, we would say. 1990s की generation ने globalization का पहला pleasant जो झोंका था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर आए, वो देखा, and when the Indian was open to all the liberalization and globalization, immediately our gates were open to the world economy. और उस world economy में इतनी ज़्यादा opportunity थी that we people, so I was at that time in my 20s, I qualified as a chartered accountant, and all my businessmen friends also, इतना opportunity था, by hook or by crook, we made good fortunes. जितने मिलियनर्स और बिलियनर्स ये 90s की जनरेशन को बिलोंग करते हैं, सो उससे पहले कभी भी नहीं थे. एंड वो बाय हुक और बाय क्रुक वाले मयर्स के साथ जो भी हमारे रास्ते में आया, वन बैरोमीटर, मनी मेकिंग, वेल्थ क्रिएशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखा. एंड द रिजल्ट इज दिस. एज आचार्य जी हैज सेड दैट अगर आज नेचर अपना बैलेंस बना रही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर व्हाट यू आर सेइंग. बट एट द सेम टाइम देयर इज वन पॉजिटिव थिंग ऑल्सो. जो अब नई जनरेशन है जिसको मिलेनियल्स कहते हैं, दे आर मच मोर ऑनेस्ट देन अस. वाई दे आर गोइंग अब्रॉड और वाई दे आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम गुड कॉर्पोरेट थिंग्स? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब देमसेल्फ इन दिस करप्ट एटमोसफेयर. दे आर मच मोर ऑनेस्ट. हमारे जो बच्चे हैं, मे बी they are self-centered, maybe so, but thus we should respect that, because I think it is the new generation of the youth which whispers in our ears
that we should behave more sensibly and more responsibly. At the same time, I think there is a time to learn from them. Rather, we should teach them, we should learn from our younger children and our younger generation. There is lot of things to learn from that. अगर मान लीजिए मार्क जकरबर्ग ने किसी 40, 50 या 60 साल के सीनियर से कुछ सीखा होता तो शायद फेसबुक कभी भी ना बनती, या जिसने वो एप्पल बनाया, जब उसने बनाया था वो 19 या 20 साल का था, अगर उसने किसी IIT के बड़े प्रोफेसर से कुछ सीखा होता, आई थिंक वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम. They have made the fortunes. So this is the new generation. There is one opportunity also that I'll tell you in the end. I'll speak for another 2 minutes and then I'll wind up. भारत का जो संधि छेद किया सर आपने, so that is actually very soul touching and it's a lesson for me. It's a learning for me. बात मैं कर रहा था फ्रीडम की. मैं दोबारा कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला फ्रीडम फ्रॉम फेयर एंड फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटी. आई थिंक फ्रेंड्स, Rotary District 3070, the organization which I belong to, we have also started one campaign on this Freedom Day. We are going to celebrate our Freedom Day at 5 o'clock in today. So we are all will assemble by virtually only. I think there is a need to pledge for something जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें. रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, फ्रीडम डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे, वी हैव स्टार्टेड वन कैंपेन नेम्ड एज फ्रीडम फ्रॉम सर्विकल कैंसर. क्या आप लोगों को मालूम है, मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, बेटियाँ बैठी हैं, क्या आपको मालूम है कि जो सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, it is the second most dangerous cancer prevalent in the women after the breast cancer. हर 8 मिनट में एक औरत हिंदुस्तान में सर्विकल कैंसर के हाथों आज की डेट में वो मर रही है. और इसमें पॉजिटिविटी क्या है, जितने भी कैंसर्स अवेलेबल हैं, सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो 100%, 99.7% एज पर मेडिकल रिसर्च प्रिवेंटेबल, क्यूरेबल नहीं है. अगर मान लो किसी को ये कैंसर होता है, वो क्यूरेबल नहीं है. 50% डेथ रेट इज देयर. एंड जो एवरेज एज है उस कैंसर की 38 ईयर्स टू 47 ईयर्स. कैन यू बिलीव इट? अगर किसी के घर में ये नामुराद बीमारी आ जाए 38 और 47 साल के बीच में, तो उस फैमिली का, उसके बच्चों का, उसके फाइनेंसिस का, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. बट यस, Rotary International, with the help of all the stakeholders of the society, is going to initiate this initiative and a campaign freedom from cervical cancer. इसमें अगर 9 से 14 साल की लड़कियों को अगर हम 2 इंजेक्शंस लगा दें, इंजेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, अगर 2 इंजेक्शंस लगा दें तो 99.7% उनकी लाइफ में से एटलीस्ट ये वाला कैंसर बाहर निकल जाएगा. I think if we really want to celebrate freedom today, if you are really concerned about this disease, I think आपकी तालियों की आवाज थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए. Please applaud. Feel free. If we really want to save our girl children from the clutches of this deadly disease, please pledge for yourself. Don't pledge for anyone else. Please pledge for yourself कि आप अपनी लड़कियों को जो 9 से 14 साल की हैं उनको 2-2 शॉट्स इस इंजेक्शन के जरूर लगाएंगे. और जो लड़कियां 14 से ऊपर हैं उनको 3 शॉट्स लगते हैं. इसके लिए अवेयरनेस बहुत कम है. जब मैंने आज से 4 महीने पहले हमारी कोर टीम ने इसके ऊपर विचार विमर्श करना शुरू किया एंड एक सर्वे की, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी जितनी अनअवेयरनेस लोअर स्टेटा में है, उतनी ही अनअवेयरनेस इसकी प्रिवेंशन के बारे में मिडिल क्लास में थी. एंड सिमिलर काइंड ऑफ अनअवेयरनेस वाज देयर इन द अपर क्लास ऑल्सो. पीपल डू नॉट नो अबाउट इट. आई थिंक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इसमें बहुत 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 बड़ा योगदान चाहिए कि वो अपनी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, स्पेशली मदर्स ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन, दे मस्ट एजुकेट देम अबाउट दिस वैक्सीनेशन. And friends, we are also doing in a measurable terms. We have some funds allocated for this campaign to vaccinate. To start with,
we are going to vaccinate 1,000 girl children across Punjab, Himachal and Jammu and Kashmir. Injection is very expensive, 2,500. 2 shots 5,000 rupees. लोअर क्लास छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास भी, जहाँ पे मेल फीमेल में लेट्स एक्सेप्ट इट, ये डिफरेंस तो है, वो भी अवॉइड करते हैं. बट अगर ये आप इंजेक्शन लगा दें तो यू कैन सेव अ लाइफ ऑफ योर फैमिली और योर चिल्ड्रन. Rotary call upon you, call upon all the stakeholders to come forward for this campaign on today, this Independence Day, and let's pledge to spread awareness, number one, and number two, through this platform of Bhavan Public School and the platform of the Facebook Live, what you are doing on you're streaming this program, I call upon you, and of course the Rotary Club of Amsar Midtown, so who's the host of today's meeting, if they want to do this drive to vaccinate, awareness तो करनी ही है. अगर आपने इस वैक्सीनेशन की ड्राइव में पार्टिसिपेट करना है, Rotary District 3070 in capacity of District Governor, I announce to give you an matching amount. अगर आप 1 लाख रुपए की वैक्सीन करते हैं तो 1 लाख रुपया I will give from my district allocated funds. Thank you very much. मुझे यही कहना था. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for your words. Now I request Chairman Sir and Principal Ma'am to extend the token of love to our guest. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, everyone, for sparing your precious time with us. Wishing you a happy Independence Day. In